Hello everyone. In the first part, you saw a great student, very happy. He's going to Germany for his education, paid only 2000 euro tuition fee, and he has the visa. We have his video, everything is good, but reality is different. He is not happy. He came back to India in 2 months. Why he came back to India, we're going to hear from his own story. But before we start the story, please note, if you cannot afford the higher education in certain countries like Germany, Sweden, Canada, Australia, that doesn't mean you can't go abroad. You can definitely go abroad at a cheaper price, cheaper cost of living and tuition fee. Lithuania, Latvia, Estonia, Hungary, Poland, Czechoslovakia, Czech Republic, these countries are available. They are offering you tuition fee at Indian cost. But students sometimes do not see as a great destination and choose some other countries where their budget is quite high and see what happens. Hello everyone. Today we are going to discuss a very important and a critical topic which I believe that is very important for every student who's going abroad for higher education. Be it any country, be it any course, be it any university. This thing which we're going to discuss today plays a very important role in your life. So joining me today, Vishal Tiwari, our student who has gone to Germany and came back in 25 days. Vishal, first of all, thank you so much for joining me and doing this session because it means a lot. The moment I and Vishal was talking about his whole experience and his challenges and everything, he was very keen to make this video because he wanted that everybody in India should see this video and take as much as they can, learning what they shouldn't do when they go abroad for their higher education. So Vishal, before we go any further, please share with your viewers, which country you have been to, what was the program, and when did you went and when you came back? I've been to Germany, Berlin especially, and I've gone for my master's course which was in Masters in Finance and Investment. So I went to Germany on 11th of November and I came back on 2nd of December. So my experience was a bit typical in Berlin in Germany because I wasn't prepared and my family situation was very bad. I can't even explain what was the time I was going through in Berlin. So there are many things to talk about. Okay, can you just show me, do you have your visa? Yeah. So that's the visa which we must have shown you in one of our videos when he was going, and he was very excited, we were very excited, but nobody knew that Vishal is going to come back very soon with a lot of I wouldn't say bad experience, but somewhere disappointing experience, right? And that's what we're going to discuss today. So Vishal, basically you went to Germany in Berlin, everything was good, admission was done, you have paid 2000 euros as a tuition fee advance. Yes. Not the whole tuition fee, but the advance. Yes. You got the blocked account done. You also you were one of the lucky students who got the dates also for the embassy. Yeah. And then you went to Germany. You landed there, everything was there. You have friends who were already there. You started staying with them. And then 25 days experience was such experience which made you come back because you said you have some medical condition with your father, right? Back in India. Yeah. Okay. But also when we were discussing off the camera, you agreed that financially what you expected Germany to be, it was over expensive. Yeah. Okay. So basically अगर हम बात करते हैं जर्मनी लैंड करने की, आपने लैंड किया, लैंड करते ही आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट होता है, दैट ब्लॉक्ड अकाउंट यू यूज्ड फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस. यही हम काउंसलिंग में बातें करते हैं, हर कंसल्टेंट यही बताता है, राइट? लेकिन आपने इसको जो है ओवरशूट कर लिया कि जो मैं जाऊंगा लैंड करूंगा और लैंड करते ही मेरे पास जो पैसे हैं ब्लॉक्ड अकाउंट से मिल जाएंगे, जो कि हुआ नहीं क्योंकि आपको लगते हैं 2 महीने अपने ब्लॉक्ड अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए, जो पहले 2 महीने होते हैं उसके पैसे आपको साथ लेके जाने थे.
जो कि हम लेके गए थे बहुत कम, सिर्फ 1000 यूरो। आप ले गए थे 500 कैश में और 500 कार्ड के अंदर। Yes. Whereas अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3000 यूरो हमें पहले 3 महीने में चाहिए होते हैं, पहले 2 महीने में। क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि देखो आप लैंड करोगे और लैंड करते ही आपने बेसिकली अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है घर का। Yes. तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एक नॉर्मल घर में 2 महीने तो होगा, करेक्ट? Yeah. तो अगर 400 यूरो मेरा रेंट है तो 2 महीने का सिक्योरिटी मतलब मुझे 800 सिक्योरिटी देना है, तो 1200 तो मुझे वहां चाहिए, प्लस मुझे खाने पीने के हिसाब से भी लेके चलूंगा तो 200-300 मुझे वो भी चाहिए। तो समवेयर डाउन द लाइन मुझे 2 से 3000 यूरो चाहिए, और ये 2 से 3000 यूरो आपने कैरी नहीं किए थे, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि आपने बेसिकली सोचा कि मैं वहां जाऊंगा, वहां जाते ही मैं अपना काम करना शुरू कर दूंगा और मैं अपने अर्निंग कर लूंगा, और उसी अर्निंग से मैं ना अपनी ट्यूशन फी की बाकी इंस्टॉलमेंट जो 2000 बाद की पे करनी है वो पे कर दूंगा, और अपने लिविंग एक्सपेंस मैनेज कर लूंगा, और 1000 तो है ही मेरे पास। यही प्लान था, और ये प्लान हमारा उल्टा पड़ गया, ठीक है। और उल्टा ऐसा पड़ गया कि जब बेसिकली इनको वहां जाके समझ में आया कि यार ये तो मैंने ओवरशूट कर लिया है, ये तो मेरे पास तो कैश है ही नहीं इतना, और साथ में फादर की मेडिकल कंडीशन भी हो गई, तो ये बेसिकली दोनों चीजें एक ही टाइम पे आई। तो अब बेसिकली अगर हम कहते हैं कि ये चीज जो हुई पूरी, आप जब हमारे ऑफिस में आए, आपने कहा जी मुझे जर्मनी जाना है, आपकी काउंसलर ने आपकी जर्मनी की काउंसलिंग करी, आपको बताया, आपको ये बताया कि 2000 यूरो की डिपॉजिट पे करके आप जर्मनी जा सकते हो, राइट, और बाकी पैसे आप ट्यूशन फी आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो ये आपको अट्रैक्टिव लगा होगा, करेक्ट? हाँ। और आपको लगा होगा बेसिकली कि भाई बाकी तो वहां से पे कर ही दूंगा। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लैंड करते ही आपको वहां पे इनकम शुरू हो जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि जो ये चीज विशाल के साथ हुई, या विशाल के साथ, देखो इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि गलती किसकी है, इसमें हम ये बोलेंगे कि इसकी जो कंक्लूजन है वो मैं लास्ट में आऊंगा इस बारे में, कहीं ना कहीं इसके अंदर फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशंस हुई हैं। जब मैं लोगों को ये बोलता हूं कि बेसिकली देखो आप उस कंट्री में जाओ जहां पे आप ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हो, यूरोप में जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सारी कंट्री कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से ही महंगी है, थोड़ी सी सस्ती होंगी बट ठीक ठाक महंगी है, लेकिन हंगरी, लाटविया, लिथुनिया, पोर्चुगल, एस्टोनिया सस्ती है, चीपर है, क्वालिटी सेम है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। अब आपने हमारे ऑफिस में आके जर्मनी में अप्लाई तो कर लिया, आपने सोचा मैं वहां पे काम कर लूंगा, लेकिन जाने के बाद आपको पता चला कि पहले 2 महीने में तो मैं काम ही नहीं कर सकता। और वो क्यों नहीं कर सकते? बाय द वे, अनमेल्डुंग आपको चाहिए होता है। आप जब लैंड करते हो तो आपको सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ता है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है अनमेल्डुंग के लिए, जो बेसिकली हमारा जैसे यहाँ आधार कार्ड बनाते हैं अपना, ठीक है, वैसे ही वहाँ पे हमारा अनमेल्डुंग होता है। तो ऑलमोस्ट 1 महीना 2 महीना ले लेता है वही, उसके बिना आप कहीं काम भी नहीं कर सकते। मतलब कि मैं लैंड करता हूँ, लैंड करने के बाद यूनिवर्सिटी आता हूँ, रजिस्ट्रेशन कराता हूँ अपनी, उसके बाद मुझे अनबिल्डिंग बनाना है। अनबिल्डिंग बेसिकली एक तरह का उसको मैं लोकल कार्ड बोल लूँ, लोकल आईडी बोल लूँ, ठीक है, लोकल फोटो आईडी, राइट, जिसमें आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता होगा, सब कुछ मिलता होगा, तो टेक्निकली टैक्स नंबर हो गया। तो उसके बिना तो काम कोई भी नहीं कर सकता, इंडिया में नहीं कर सकते, ठीक है, डन। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने कहा 2 महीने उसको लग जाते हैं आने में, और इन्हीं 2 महीने को सस्टेन करना पड़ता है आपको अपने फंड्स के साथ, जो कि हम नहीं कर पाए, ठीक है। तो और जो ब्लॉक्ड अकाउंट होता है वो कब आप अनब्लॉक करा सकते हो? मतलब जाते ही करा दोगे या कुछ टाइम लगेगा? जैसे आप यही अनमेल्डिंग होता है, टैक्स आईडी मिलती है, तब आप अपने बैंक के पास जाते हो कि हमारे पास टैक्स आईडी आ गई है, हमारा मेल्डिंग हो गया है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, उसके बाद आपको 1-2 हफ्ते लगते हैं आपका बैंक अकाउंट खोलने में। लगभग 2.5 महीने पहुंच चुके हैं। हाँ, और उसके बाद भी डिपेंड करता है आपका जो ब्लॉक अकाउंट जिस बैंक अकाउंट में है वो कितना टाइम लेता है आपका अमाउंट जो ट्रांसफर करने में, जो कि आप अगर कोटक से कराते हो तो मैक्स ज्यादा 1 महीना, वरना फिनटेक आपको जल्दी करके दे देता है।
तो यानी कि अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो देखो, मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आप कोटक से कराओ या फिनटीबा से कराओ या किसी बैंक से कराओ, पर हाँ मैं हमेशा फिनटीबा इसलिए रिकमेंड करता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा पार्टनर है, बट इसलिए कि वो जर्मन बैंक है, राइट। डोचे बैंक हो गया, फिनटीबा हो गया, ये दोनों जर्मन बैंक्स हैं और ये बैंक्स बहुत जल्दी काम करते हैं क्योंकि ये सारे डिजिटलाइज बैंक है और सारा काम डिजिटली होता है। इसमें आपको बैंक को कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता, इनकी बड़ा प्रोसेस बड़े डिफाइंड है। सो अब बेसिकली हम पहुंच गए, हमने पैसे हमारे पास होने चाहिए, वो हम समझ में आ गया हमारे को। काम आपने बता दिया कि काम आप नहीं कर सकते तब तक, ठीक है। तो ये तो हो गई फाइनेंशियल को लेके। जो ट्यूशन फी आपको पे करनी थी, वहां भी हमने डिस्कस किया ऑफ कैमरा कि भाई 2000 तो पे यहाँ से करके गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद आपको था कि मैं तो काम पैसे कमा के यहीं से ही अर्न कर लूंगा और आप पे कर दूंगा, वो मिसफायर कर गया। तो अगर मैं ये कहूं कि बेसिकली जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर, जिन कंट्रीज के अंदर ट्यूशन फी 2 से 3000 यूरो की है, क्या अगर आप वहां अप्लाई करते तो क्या ये चैलेंज आता आपको? नहीं, ये चैलेंज एकदम स्किप हो जाता। तो यानी कि हमने 2000 की, यानी कहता हमें लगा भी 2000 ही पे करने हैं, चलो कोई बात नहीं हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और हमने अप्लाई कर भी लिया, लेकिन वहां जाने के बाद ये पूरी चीज आपके सर ही पड़ जाती है। तो स्टूडेंट प्लीज, जो अर्ली शॉर्ट डिपॉजिट्स होते हैं वो सिर्फ डिपॉजिट के लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वहां जाके बाकी फीस नहीं पे करनी। विशाल के केस में ही thought he gonna make money from the very first month और वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स मंथली पे कर लेगा, जो कि नहीं हुआ। सो प्लीज आप बिल्कुल भी इस तरीके से प्लानिंग ना करें। बाय द वे, जर्मनी के अंदर ट्यूशन फी अब 2023 से आपको पूरे साल की पे करनी पड़ेगी। तो मैं तो ये कहूंगा ये अच्छा ही हुआ, ताकि विशाल जहां गलती कर पाया कोई और नहीं कर पाएगा। भाई पहले विशाल ने कहा कि मेरे पास फर्स्ट फ्यू डेज के पैसे नहीं थे, मैं फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं था अपने लिविंग एक्सपेंसेस को लेके, तो एक गलती वो हुई। दूसरी गलती, ट्यूशन फी के पैसे वहीं से कमा लूंगा और सारे वहीं से पे कर दूंगा, ये दूसरी गलती थी। तो ये तो कम से कम बची हो गई, ठीक है ना। तो भाई सेकंड गलती तो एम्बेसी नहीं बचाती हमारी, कोई भी बिना फी पे नहीं जा पाएगा। तो लिविंग एक्सपेंस भी, आप बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ब्लॉक्ड अकाउंट क्यों करते हैं, तो ये रीजन है ब्लॉक्ड अकाउंट करने का, ताकि स्टूडेंट्स अपने पैसों को वहां पे यूज करें और वो सिर्फ अपनी जॉब पे डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि फिर पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे आके अब आप वापस आ जाते हो इंडिया के अंदर, आपने डिसाइड कर लिया 25 जो दिन थे आपके, ये बड़े चैलेंजिंग हो गए, खासकर जो डिसीजन लेना कि मैं वापस जा रहा हूँ। ये तो मतलब इतने पैसे इन्वेस्ट कर चुके हो आप, ब्लॉक्ड अकाउंट खोल लिया, 2000 यूरो खर्च कर लिए, आपने एयर टिकट खरीद ली और शॉपिंग भी करी होगी बहुत सारी। तो एक टाइम पे जब आपको लगा कि नहीं यार अब मैं ना वापस चलता हूँ इंडिया, ये क्या हुआ, क्या चीज थी ऐसी जो आपको मजबूर कर गई कि भाई नहीं वापस जाना मुझे? एक तो जो सिचुएशन थी कि एक बार को मुझे पता है कि मेरे पास लिविंग एक्सपेंस नहीं है, मेरे को ट्यूशन फी पे करनी पड़ेगी अपने पास से 2 महीने तक, और लिविंग एक्सपेंस भी। बट मेरे फादर की कंडीशन की वजह से मुझे ये डिसीजन काफ़ी फोर्स करा यही करने के लिए कि मेरा फादर की कंडीशन जो है ये नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि अब मैं किससे मांगूंगा अपने फादर, ये मेरे जो मेन प्रायोरिटी जो है मेरे लेने वाले। और ऑब्वियसली हमारा प्लान था कि हम आगे कोई जरूरत पड़ती है तो मेरे फादर भेजेंगे, बट वही सही से नहीं थे, तो मेरे को ये डिसीजन लेना ही पड़ा, और ये काफ़ी हार्ड भी डिसीजन था। बट अगर मैं अभी नहीं करता फिर बाद में ये और प्रॉब्लम करता, और यहाँ पे एटलीस्ट मैं आ गया हूँ तो अब मैं चीज सोच सकता हूँ आके, फिर आगे और बेटर ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। वेरी ट्रू, मतलब कि क्योंकि लिविंग कॉस्ट इतनी एक्सपेंसिव थी कि आपको लगा कि यार ये मैं फादर से हर महीने 2 महीने मंगाऊंगा, मतलब 2-3 महीने भी आपको दिक्कत लगी। 2-3 महीने ऊपर से आपका जो ट्यूशन फी है वो सोचा था, जो मैंने अब इंस्टॉलमेंट वो भी मंगानी पड़ती। ठीक है, तो ये चीज बच सकती थी अगर इन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई होती लिथुनिया, लाटविया, हंगरी, पोलैंड में, क्योंकि वहां पे 1 साल की ट्यूशन फी 2 से 3000 यूरो है, जबकि जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर ट्यूशन फी आती है आपकी लगभग 8000 यूरो से लेके 10,000 यूरो तक। अब
क्वेश्चन काफी लोग कमेंट करेंगे जी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेते, फ्री एजुकेशन कर लेते। भाई 3 साल की बैचलर कर रखी है विशाल ने, जो कि डीयू से कर रखी है 70% से। 3 साल की डीयू की जो डिग्री है वो 180 ECTS पॉइंट्स पूरे नहीं करती है। इसीलिए जब आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, मेजॉरिटी ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु अप्लाई विद 3 ईयर बैचलर डिग्री, उनके एडमिशन रिफ्यूज होते हैं क्योंकि उनके जो क्रेडिट्स हैं पूरे वो पूरे नहीं हो पाते। उन्हें चाहिए 180, आपके 180 नहीं है एज पर देम, बिकॉज हमारी एजुकेशन 13 साल की यहाँ पे नहीं है। तो जो बच्चा बैचलर करने जाता है उसे बोलते हैं 13th ईयर करोगे तो हम आपको बैचलर मिलेंगे। इसी तरीके से जब आपने मास्टर्स करनी है, 95% ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी एक्सपेक्ट यू टू हैव अ 180 ECTS बैचलर, व्हिच मींस अराउंड अबाउट 4 years इन इंडिया। तभी बीटेक के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। इफ यू हैव बीटेक, नो प्रॉब्लम। सो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो पैसे का अरेंजमेंट हम नहीं कर पाए, हमें इंडिया वापस आना पड़ा। सब कुछ वहीं का वहीं धरा के धरा आ गया। हम जीरो पे फिर से आ गए जहां से हम शुरू हुए थे। पर इस पूरे सर्कल के अंदर जो लर्निंग ये थी कि आपके पास हाई क्वालिटी एजुकेशन और यूरोपियन कंट्री में है, अवेलेबल है। अब हुआ क्या, अब हम बात कर रहे थे अभी विशाल के साथ। तो विशाल, जब आपने मुझे अपनी सारी बात डिस्कस करी, मैंने आपसे पर्सनल टाइम दिया, आप आए मेरे पास कि सर मेरा जो ब्लॉक्ड अकाउंट है उसे अनब्लॉक करा दीजिए। तो मैंने बताया कि अनब्लॉक के लिए हमें जर्मन एम्बेसी दिल्ली में एक आपको जाना पड़ेगा, उनका एक फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, उनकी एक फी लगती है वो भी हम पे करेंगे। तो ये करके हम अनब्लॉकिंग करा लेते हैं, ठीक है, ये तो हम करा ही रहे हैं। इसके बाद मेरी और आपकी बात हुई कि आप लाटविया अप्लाई करो, जिसमें आपको फुल टाइम काम करना अलाउड है एज ए मास्टर स्टूडेंट, और पार्ट टाइम यानी कि दिन शाम के टाइम अपनी क्लासेस पढ़ सकते हो। और ट्यूशन फी आती है 3,300 यूरोस की। 7,000 रुपीज का हॉस्टल चार्ज है। अगर 7,000 रुपए हॉस्टल चार्ज है, इंडियन रुपीज हॉस्टल चार्ज है, तो मेरे को नहीं लगता था कि आप इंडिया वापस आते। नहीं, कल तो नहीं कह रहा हूं, नहीं रियलिटी है। मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं कहीं ये नहीं कहूंगा कि आपको अपना पूरा ओपिनियन देना चाहिए कि एक तरफ आपने 2,000 भरे और भरने थे और महीने का 1,000 यूरो खर्च करना था, दूसरी जगह सिर्फ 7,000 इंडियन रुपीज भरने थे, और इंडिया से आप 3,300 यूरो ट्यूशन फी पहले ही साल की पे करके गए थे। तो आपके माइंड में बड़ी क्लैरिटी थी, मुझे कुछ पे नहीं करना। तो ये जो वापसी थी, क्या लाटविया लिथुनिया से भी होती? नहीं, इनफैक्ट बेटर होता है वहां पे सिचुएशन। ये वो स्टूडेंट हैं जिनका वीजा लगा, जो गए, जिनको मेंटली प्रिपेयर थे लेकिन फाइनेंशियली नहीं थे। मैं फिर बोलूंगा, जर्मनी बहुत अच्छी जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विशाल, ये भी आप भी मानते हो वहां बहुत स्टूडेंट्स हैं, आई वुड डी कि बहुत बड़ा नंबर जर्मनी जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास ट्यूशन फी जो है वो नहीं है, राइट, और आपके पास फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं है, तो ये मत सोचो कि मैंने कहीं से ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे ले लिए हैं 2,000 यूरो पे करके, चलो जर्मनी चले जाता हूं या कहीं भी चले जाता हूं। आपको वो कंट्री पिक करनी है यूरोप के अंदर जहां पे आपकी ट्यूशन फी आप अफोर्ड कर सकते हो फर्स्ट ईयर में, और आपके लिविंग एक्सपेंसेस तो आप एटलीस्ट 6 महीने अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास हो, और वहीं हम विस्तार कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी और आपसे शेयर करनी बहुत जरूरी थी। एक डिस्कशन मैं और करूंगा। अभी मेरे एक स्टूडेंट था, वो जर्मनी के लिए उसने लाटविया से वो जर्मनी गया, और जर्मनी जब वो गया, जब वो वहां पहुंचा, पहले उसको हमने लाटविया भेजा। वो लाटविया से जर्मनी, उसने कहा सर मुझे ना लाटविया में नहीं पढ़ना है, मुझे जर्मनी में पढ़ना है, राइट। तो जर्मनी में जब हमने उसको ट्रांसफर करवाया, उसका एडमिशन कराया वहां से, उसका वीजा भी हमने करवाया। मैं अभी इस पूरी वीडियो के क्लिप के बाद उसका बकायदा वीजा कॉपी आपसे शेयर करूंगा। उस बच्चे के साथ कुछ रेसिस्ट थोड़ा सा अटैक हो गया वहां पे जब वो वहां पहुंचा, और वो इतना घबरा गया कि उसको जर्मनी बिल्कुल नेगेटिव लगने लगा। तो उस बच्चे को बेसिकली वो वापस चला के लाटविया कहता मैं वहां बड़ा खुश हूं, मुझे नहीं जाना। तो हम उसकी भी स्टोरी कवर करेंगे, ये बात हम कवर करेंगे जब मैं लाटविया जाऊंगा उसको मिलने के लिए अपने नेक्स्ट ट्रिप के अंदर। बट कोई एक मैसेज विशाल जो आप चाहते हो कि एज ए स्टूडेंट, बिकॉज कोई भी एक्सपीरियंस कभी पूरा नहीं होता स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के बगैर, तो
एज ए स्टूडेंट आप उन पोटेंशियल स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे जो जर्मनी जाना चाहते हैं या फिर कंफ्यूज है कि मैं जर्मनी जाऊं, हंगरी जाऊं या लातविया जाऊं? बेसिकली उनको अपने फाइनेंशियल जो उनकी सिचुएशन है उनके बारे में पता है, वो जानते हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं जर्मनी को, बल्कि आप थोड़ा नेटवर्किंग करोगे, थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको सारा अपना आइडिया मिल जाएगा कि कितना एक्सपेंस होता है जर्मनी में और लातविया में। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने खुद इतने आप बड़े हो, इतने समझदार हो, जिससे आप अपना एक्सपीरियंस करके अपना ये चूज कर सकते हो कि जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो वो बेटर होगा आपके लिए। जो स्टूडेंट जर्मनी में अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी होंगी, राइट? तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जो स्टूडेंट, आपने एक बात बोली थी मुझे भी ऑफ द कैमरा, आपने कहा सर कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो आते तो हैं लेकिन आते ही उन्हें पढ़ाई से मतलब नहीं है, वो कहते हैं भाड़ में गया वीजा, और वो काम करने घुस जाते हैं। ये क्या स्टोरी है? ये बेसिकली वही करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट डालते हैं अपनी कि भाई हमें विड्रॉ करना है एडमिशन अपना, तो उनका इंटेंशन ये रहता है कि विड्रॉ करवा के हम सीधा अपना फोकस पूरा 6 महीने जितने भी अपना काम पे करेंगे, जितना हम कमा सकते हैं कमा के अपना वापस घर चल जाएंगे, क्योंकि उनको वीजा से एक्सटेंड होगा नहीं, क्योंकि अगर वो अपनी क्लासेस नहीं कर या कहीं और किसी और कंट्री भाग जाएंगे, राइट? सो यानी मिस यूज ऑफ द वीजा, राइट? सो स्टूडेंट्स प्लीज ये जो कुछ कंसल्टेंसी या कुछ एजेंसीज अगर आपको ये कहती है कि आप कर सकते हो चीज, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप प्लीज इस टाइप का कोई स्टेप ना लें, क्योंकि एक बार आपने वहां चले गए और आपने अपने फिंगर दे दिए हैं तो आपका पूरा रिकॉर्ड वहां पे रहेगा। और गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं। आपके बायोमेट्रिक भी हुए थे, आप वहां पहुंचे हो, सब कुछ कंट्रोल्ड है अपने, मतलब हम सोचते हैं कि भाई हम यहाँ से भाग के कुछ और कर लेंगे, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं, सब सिस्टमैटिक है। सो बेसिकली ये एक स्टोरी थी विशाल की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी शेयर करनी। इट्स नॉट अबाउट किसकी गलती हुई, कैसे हुई, या विशाल, अच्छा एक यही बात थी, कई लोग सोच रहे होंगे कि कि विशाल जो था ये उसको पता होना चाहिए था कि भाई जर्मनी जा रहा है, इतना महंगा कंट्री है। नहीं, बात ये है कि इसमें विशाल एज ए इंडिविजुअली अपनी मिस कैलकुलेशन कर गया फाइनेंशियल्स को लेके, और वहीं पे दिक्कत आ गई। क्योंकि ब्रांड, आज में अगर विशाल को विशाल जब फर्स्ट टाइम आए थे ना, अगर मैं आपको बोलता विशाल जर्मनी मत जाओ, आपने लातविया अप्लाई करो, आप कभी जाते लातविया? नहीं आते, क्योंकि आपको लगता है छोटी कंट्री है, लिथुनिया छोटी कंट्री है, एस्टोनिया छोटी कंट्री है, या हंगरी छोटी कंट्री है, आपको लगा कि बड़ी कंट्री जाऊंगा, बड़ा ब्रांड देखता हूं, राइट? सो कहीं ना कहीं ये चीज मिसकैलकुलेट हो गई। सो अगर आप फंडिंग अफोर्ड कर सकते हो अपने पूरे फर्स्ट ईयर की, आप अप्लाई करिए जर्मनी में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी कंट्री है। लेकिन अगर आपको बजट में जाना है, आप मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आपको लगता है मुझे क्वालिटी एजुकेशन चाहिए है और मुझे इतने पैसे नहीं खर्चने हैं, तो आप इंडियन कॉस्ट पे भी यूरोप में पढ़ सकते हो, इन कंट्रीज में। और आई बिलीव आप, क्योंकि आप जर्मनी होके आए हो तो आपको पता ही होगा कि सारे प्रोग्राम ECTS बेस्ड होते हैं, तो डजंट मैटर कि आप जर्मनी पढ़ो या लातविया पढ़ो या लिथुनिया पढ़ो, आपके प्रोग्राम सारे रिकॉग्नाइज्ड हैं। थैंक यू विशाल फॉर डूइंग दिस सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस, एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड वी सी यू नेक्स्ट डे। Before I bring this video to the end, I want to conclude. What did we learn? We learned that not every student who get admission and visa in his desired university, he's a happy student. It is important to share these stories with you, so you learn from these case studies and then you also do not make same mistakes. So the learning was that if you have low budget of tuition fee and living expenses, do not go to those countries which have higher living costs and higher tuition fee. Don't make the same mistake with Vishal did. Apply for Lithuania, Latvia, Estonia, Hungary, Poland, Czech Republic. These countries are equally good. They have tuition fee of approximately 2 to 3 lakh rupees per year. The living cost is approximately 150 euros to 200 euros. You can still survive. You can work part-time also, but you will not be over budget. Students, the reason of sharing this video is to give you the better understanding of the world when you reach there. I hope you liked the video. If yes, please subscribe to my channel and share as much as possible to show some love. And please write the comments, all the questions you have. I'll be answering all your questions in the next video. Thank you.
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.